بالآخر پاکستان اور افغانستان جھڑپوں کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ کیا اہداف ہیں جو پاکستان افغانستان میں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ملا یعقوب کہتے ہیں اگر کابل پر حملہ ہوگا تو اس کے جواب میں اسلام آباد پر بھی حملہ ہوگا۔ کیا پاک افغان کشیدگی طول پکڑتی دکھائی دے رہی ہے؟ حالیہ کارروائیوں میں پاکستان کیا اہداف حاصل کر پایا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں انفلٹرڈ ود حسنین اولک۔ ایران، اسرائیل و امریکہ جنگ کے پیش نظر عالمی منظر نامے سے اوجھل پاکستان افغانستان جھڑپیں تاحال جاری ہیں۔ اب تک کی کارروائیوں میں دستیاب اعداد و شمار کے مطابق پاکستان نے افغان طالبان کے 500 سے زائد جنگجو جہنم واصل کر دیے ہیں۔ پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر فراہم کی جانے والی اپ ڈیٹس کے مطابق پاکستان نے اب تک کی جانے والی کارروائیوں میں افغانستان طالبان کی 230 چیک پوسٹیں اور 200 ٹینک، توپیں اور بختر بند گاڑیاں تباہ کی ہیں۔ دوسری جانب افغان طالبان حکومت کے عہدیداروں کی طرف سے بھی جوابی دعوے کیے گئے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی طرف سے ہر حملے کے جواب میں پاکستان کی بڑی تعداد میں فوجی مارنے کا دعویٰ کیا ہے۔ دونوں اطراف کے ان دعووں کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکتی۔ جمعے کے روز پاکستان کے سرحدی علاقے کرم پر افغانستان کی طرف سے گولہ باری کی گئی، جس کے نتیجے میں ایک بچے سمیت کئی افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ افغانستان کے وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد نے سنیچر کے روز ایک انٹرویو میں افغانستان کے مقامی ٹی وی چینل طلوع نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر کابل پر حملہ ہوگا تو اس کے جواب میں اسلام آباد پر بھی حملہ ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان لڑائی نہیں چاہتا، لیکن اگر وہ جنگ کو 10 سال تک بھی طول دینا چاہتے ہیں تو ہم 10 سال تک لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کوئی خوف نہیں۔ افغان وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان میں کشیدگی کی بنیادی وجوہات کا محور ڈیورنٹ لائن پر تنازعات ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے مطالبات پر بات کرتے ہوئے ملا یعقوب مجاہد نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے ٹی ٹی پی کو دہشت گرد تنظیم قرار دینا تخیلاتی اور غیر حقیقی ہے اور ان کے مطالبات بے بنیاد ہیں۔ افغان وزیر دفاع کا بیان اس وقت آیا جب حال ہی میں پاکستان کے حکام کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اپنے اہداف حاصل ہونے تک پاکستان افغانستان کے اندر کارروائیاں جاری رکھے گا۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری کشیدگی کا اختتام کہاں ہوگا؟ جو اہداف پاکستان حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کس حد تک ممکن ہے اور کیا یہ کشیدگی طول پکڑتی دکھائی دے رہی ہے؟ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے بتایا کہ پاکستان نے افغان طالبان پر یہ واضح کر دیا ہے کہ انہیں پاکستان یا دہشت گرد تنظیموں کے درمیان ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ انتہائی واضح، نمایاں اور قابل تصدیق اقدامات کے ذریعے افغان طالبان کو یہ انتخاب کرنا ہوگا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان بارہا افغان طالبان سے یہ مطالبہ کر چکا ہے کہ وہ پاکستان میں کارروائیاں کرنے والی دہشت گرد تنظیموں کی قیادت کو پاکستان کے حوالے کرے اور ان کے خلاف عملی اقدامات کرے جو نظر بھی آئیں اور قابل تصدیق بھی ہوں۔ جب تک ایسا نہیں ہوتا پاکستان کارروائیاں جاری رکھے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان طالبان حکومت کے مختلف دہشت گرد گروہوں کے ساتھ قریبی روابط میں ہیں اور افغان سرزمین پاکستان کے اندر دہشت گردوں کی کارروائیوں میں استعمال ہو چکی ہے، جن میں بے شمار عام افراد اور سیکیورٹی اہلکار مارے گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان نے دوست ممالک کے ثالثوں کے ساتھ مل کر ہمیشہ کوشش کی ہے کہ مسائل کا حل نکالا جائے، تاہم اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ پاکستان کا افغانستان یا افغان عوام کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں اور افغانستان کے اندر ہمارے اہداف دہشت گردوں کی تنصیبات اور ان کے سپورٹ سسٹمز ہیں جو انتہائی واضح انٹیلیجنس کی بنیاد پر چنے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک طویل عرصے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ افغانستان کے خلاف جاری کارروائیاں اس ہی کوشش کی ایک کڑی ہیں جن کا مقصد اپنے شہریوں کا تحفظ ہے۔ یہاں یہ بات کرنا بھی ضروری ہے کہ حالیہ کارروائیوں میں پاکستان کو کیا اہداف حاصل ہوئے ہیں۔ ابتدائی فضائی حملوں کے بعد پاکستان کی طرف سے کی جانے والی زیادہ تر کارروائیوں کا محور افغانستان کے سرحدی علاقے ہیں، جہاں ان کی فوجی پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حالیہ کشیدگی کی ابتدا میں پاکستان نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے افغانستان کے اندر
दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है। ताहम इन कार्रवाइयों में कल अदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के किसी बड़े कमांडर की हलाकत की कोई खबर सामने नहीं आई, ना ही अफगान तालिबान क़यादत को निशाना बनाया गया है। तो बिल आखिर पाकिस्तान इन फौजी कार्रवाइयों से क्या हासिल कर रहा है? अब्दुल्ला खान इस्लामाबाद में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ नामी थिंक टैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो खित्ते में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर नज़र रखता है और उनका जायज़ा लेता है। अब्दुल्ला खान ने कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में सरहद के करीब इलाकों में उन फौजी तनसीबात को तबाह कर रहा है या कर चुका है जहां से TTP और दहशतगर्द तंजीमों की कार्रवाइयों को लॉन्च किया जाता है। साथ ही उन सरहदी चौकियों को भी तबाह कर रहा है जहां से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की तरफ से हर बार फौजी कार्रवाई की जाती है। हालिया कशीदगी के दौरान भी इन चौकियों से पाकिस्तान पर हमले किए गए हैं। अब्दुल्ला खान का कहना था कि उन कार्रवाइयों से पाकिस्तान का मकसद ये नज़र आता है कि इन इलाकों में अफ़गान तालिबान को इस पोजीशन में लाया जाए कि वो मुस्तकबिल में इसके लिए सिक्योरिटी चैलेंज ना बने। इनके मुताबिक बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान ने इंतहाई मनसूबाबंदी के साथ नपे-तुले अंदाज में अपनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ की हैं और उसके अहदाफ बहुत वाज़ेह हैं। अब्दुल बासित सिंगापुर में एस रजारतनम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में सीनियर एसोसिएट फ़ेलो हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान अफ़गान तालिबान के पास मौजूद असले के इस ज़ख़ीरे को भी निशाना बना रहा है जो अमरीकी अफवाज ने अफ़गानिस्तान से इनखला के वक्त पीछे छोड़ा था। अब्दुल बासित के मुताबिक इस अमरीकी असले तक रसाई इन दहशतगर्द तंजीमों को भी मिल गई थी जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयों में मुलविस हैं। अमरीकी असले की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कार्रवाइयों में ज़्यादा शिद्दत आ चुकी है। वो कहते हैं कि इस असले में क्वाड काप्टर्स, रात के अंधेरे में निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाले और लेज़र गाइडेड हथियार वगैरह शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने बिग्राम एयरबेस पर हालिया कार्रवाई में क्वाड काप्टर्स या ड्रोन्स के ज़ख़ीरे को भी निशाना बनाया है। PCISS के MD अब्दुल्ला खान ने बताया कि अमरीकी फ़ौज की तरफ से छोड़े गए असले का कुछ अरसे पहले ही पाकिस्तान में सरगर्म कल अदम दहशतगर्द तंजीमों के हाथ लग चुका है। जो असला पहले ही उनके पास जा चुका है उसको रोकना तो मुश्किल है। ताहम पाकिस्तान अफ़गान तालिबान के पास मौजूद असले के ज़ख़ीरे और इसके नेटवर्क सिस्टम को निशाना बना रहा है। अब्दुल्ला खान समझते हैं कि इस किस्म की कार्रवाइयों में मुकम्मल तौर पर इस असले को ख़त्म करना तो मुमकिन नहीं, ताहम नुकसान ज़रूर पहुँचाया जा सकता है। सिंगापुर में एस रजातनम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में सीनियर एसोसिएट फ़ेलो अब्दुल बासित समझते हैं कि फ़ौरी तौर पर नहीं, लेकिन अफ़गानिस्तान में रजीम चेंज या हुकूमत की तब्दीली का ऑप्शन पाकिस्तान की मेज़ पर ज़रूर आएगा। उनका कहना था फ़ौरी तौर पर तो ऐसा करना मुमकिन भी नहीं और होता नज़र भी नहीं आता। यही वजह है कि पाकिस्तान ने अब तक अफ़गान तालिबान की क़यादत में से किसी को भी निशाना नहीं बनाया। ताहम आगे चलकर ऐसा मुमकिन हो सकता है कि पाकिस्तान इस हवाले से कार्रवाई करे। PCISS के MD अब्दुल्ला खान भी इस बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं कि फ़ौरी तौर पर अफ़गानिस्तान में रजीम चेंज की पॉलिसी पर नहीं जाया जा सकता, ताहम आगे चलकर इसके होने के इम्कानात को रद्द भी नहीं किया जा सकता। उनका कहना है अफ़गान तालिबान एक लंबी गोरिल्ला जंग लड़ने की सलाहियत भी रखते हैं। अब्दुल्ला खान के मुताबिक उन्होंने अपनी 1.5 लाख के करीब फ़ौज खड़ी कर रखी है जिसके पास $7 अरब मालियत का वो असला मौजूद है जो अमेरिका पीछे छोड़ गया था। वो नहीं आने वाली किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ लंबी गोरिल्ला जंग लड़ सकते हैं। अब्दुल्ला खान समझते हैं कि यह पाकिस्तान समेत खित्ते के दिगर ममालिक बशमूल चीन किसी भी मुफाद में नहीं होगा, इसलिए पाकिस्तान फ़ौरी तौर पर ऐसा नहीं करना चाहेगा। उनके मुताबिक पाकिस्तान चाहेगा कि इन कार्रवाइयों के ज़रिए अफ़गान तालिबान को इस पोजीशन पर लाया जाए जहां वो पाकिस्तान की बात मानने पर आमादा हो जाए। PCISS के MD अब्दुल्ला खान कहते हैं कि पाकिस्तान का बड़ा मसला TTP और दहशतगर्द तंजीमों की क़यादत है जो अफ़गानिस्तान में पनाह लिए हुए है और यही पाकिस्तान की तरफ से अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों की बड़ी वजह और बुनियादी वजह है। उनके ख्याल में अगर अफ़गान तालिबान उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं तो इन तंजीमों के पास मौजूद अमरीकी असले को पाकिस्तान के अंदर से
पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर सकता है। अब्दुल्ला खान का कहना था कि टीटीपी और गुल बहादुर ग्रुप जैसी तंजीमों की क़यादत अफ़गानिस्तान में पनाह लिए हुए है और एक हालिया सिक्योरिटी सर्वे के मुताबिक उन्होंने लगभग 8,000 जंगजुओं पर मुश्तमिल एक फ़ोर्स भी खड़ी कर रखी है जो अफ़गानिस्तान के अंदर ही मौजूद है। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने इब्तदाई कार्रवाइयों में इन दहशतगर्द तंजीमों के ठिकानों को निशाना बनाया है। बलोच लिबरेशन आर्मी के ठिकाने जो शुमाल की जाने मौजूद हैं उनको भी निशाना बनाया गया। अब्दुल्ला खान कहते हैं कि ताहाल पाकिस्तानी कार्रवाइयों में किसी बड़े दहशतगर्द कमांडर के ना मरने की वजह यह हो सकती है कि वो महफूज मकामात पर छुपे हुए हैं। उनका कहना है अब पाकिस्तान हालिया कार्रवाइयों में अफ़गान तालिबान की फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाता नज़र आ रहा है। यहाँ अहम नुक्ता नज़र यह है कि पाकिस्तान के लिए इस कशीदगी की इख्तितामी हद क्या हो सकती है। अब्दुल बासित कहते हैं कि बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि पाकिस्तान कार्रवाइयों के ऑप्शन को खुला रखना चाहता है। इसके लिए ये इस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक वो अफ़गान तालिबान से अपनी बात मनवा नहीं लेता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से ये पैगाम दिया जा रहा है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हर वक्त तैयार रहूँगा। ताहम अब्दुल बासित कहते हैं कि दोनों ममालिक मुकम्मल जंग की तरफ नहीं जाना चाहते और इसीलिए किसी तरफ से सुर्ख लकीर को अबूर नहीं किया गया। पाकिस्तान ने भी ताहाल अफ़गान तालिबान की क़यादत में से किसी को निशाना नहीं बनाया क्योंकि ऐसा करना कशीदगी को मुकम्मल जंग की तरफ धकेल सकता है। उनका कहना है कि दोनों तरफ की क़यादत की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि वो कशीदगी कम करने की तरफ जाना चाहते हैं। इसलिए अब्दुल बासित समझते हैं कि ये कशीदगी तवील होगी जो कि पाकिस्तान के लिए एक मुनज़्ज़म इंतशार की शक्ल रहेगी, यानी ऐसी कशीदगी जो कंट्रोल की जा सके। अब्दुल्ला खान कहते हैं कि बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि इस मरतबा पाकिस्तान अपनी कार्रवाइयाँ ख़त्म करने से पहले कुछ काबिल यकीन गारंटी चाहता है, यानी अगर अफ़गान तालिबान की तरफ से कोई काबिल तस्दीक इक़दामात नज़र आते हैं तो मामला कशीदगी कम होने की तरफ जा सकता है और कार्रवाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इसी के साथ हसनैन औलख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।